Good afternoon, everyone. Respected Honorable Vice Chancellor, Sir, Registrar, Sir, Joint Registrar, Sir, all deans, directors, HODs, esteemed faculty members, proud parents, and my dear students. On behalf of Mangalayatan University, I extend my heartfelt greetings to each one of you. Today is a very special day because it marks not only the beginning of a new journey about inspiration, assurance, and belonging. To the parents sitting among us, I want to say thank you for trusting us with the future of your children. We understand your hopes. We assure you that our guidance and the right here at Mangalayatan University will find not only quality education but also care, guidance, and the right environment to grow. And to our students, remember the university is not just a place to study, but a home where you will discover your potential, shape your dreams, and create memories that will stay with you forever. As someone rightly said, this is the beginning of a new chapter, and every page you write will shape your tomorrow. So let us begin this journey with joy, positivity, and pride. To mark the auspicious beginning of today's program, we now move to the lighting of the ceremonial lamp, symbolizing knowledge, wisdom, and positivity. This lamp deters darkness and paves the way for enlightenment. I humbly invite our esteemed dignitaries to kindly come forward and grace occasion by lighting the lamp, invoking the blessings of Goddess Saraswati, the eternal source of learning, wisdom, and creativity. To lead us in this spiritual invocation, I would like to request the students of Mangalayatan University. Setting an inspired tone for this orientation program. Let us resonate with the spirit of Mangalayatan University through its Kulgeet. Gyan Hai Vishwa Ki Bhove Pratishtha. The university's Kulgeet represents a musical expression of the institution's values, history, spirit, and aspirations with such academic excellence, innovation, diversity, service, and leadership, along with the role of this institution in advancing knowledge, fostering creativity, and contributing to the betterment of the society. Every journey becomes more meaningful when guided by wise mentors whose words shape our path and inspire our efforts. At the beginning of this program, it is important that we receive such guidance and encouragement. Therefore, I now take the privilege of inviting Professor Saurabh Kumar, Director Admissions, to deliver the welcome address. मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उपस्थित हैं और पेरेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। आज आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से सुबह से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मन में बहुत उत्साह है, बहुत कुछ जानने की इच्छा है यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ लगभग 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सफलतापूर्वक अपना करियर बना के अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है आज की तारीख में जिसमें मंगलायतन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना हों। यहाँ पे 350 टीचर्स हैं, 350 टीचर्स के साथ और लगभग 700 नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन से लेकर हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी संख्या लगभग 650 है। यानी 1000 एम्प्लॉइज़ दिन रात आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के सपनों को सच करने के लिए काम कर रहे हैं। और मंगलायतन यूनिवर्सिटी में विभिन्न 22 विभाग हैं जिसमें कि 100 से ज़्यादा से कोर्सेज की
पढ़ाई हो रही है। बहुत कम ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे जिसमें इतना रेंज हो कोर्सेज का कि आप जिस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हो उस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ समस्याएं थी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए जो है बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे उपस्थित हो पाए। तो लगा कि यहाँ नंबर्स कम हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये 5 विभिन्न स्तरों पे 5 दिन तक चलने वाला है और एक दिन में कम से कम 500 का नंबर रहने वाला है। तो संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा है और आज बारिश थी, इसकी वजह से कुछ कम स्टूडेंट्स यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। लगभग 2500 की संख्या अगले 5 दिन में मंगलायतन यूनिवर्सिटी में रहने वाली है ओरिएंटेशन की। इसीलिए इस कार्यक्रम को 5 दिवस में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है कि संख्या कम है, संख्या पूरी है हमारे पास और एडमिशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसी शंका हो जो आप जानकारी चाहते हो तो एडमिशन सेल में आके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने विभागों में जाएंगे, अपने टीचर्स से मिलेंगे, कोर्स से संबंधित जानकारियां आपको मिलेंगी। लाइब्रेरी का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें कि आपको बुक्स वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। एक बहुत ही उन्नत लाइब्रेरी मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास है जिसमें लगभग 80,000 बुक्स हैं और 20,000 से ज़्यादा ई बुक्स की अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए सुविधाएं आपके लिए भरपूर हैं। आप लोग अपना भविष्य, अपने सपने जो यहाँ लेके आए हैं उनको साकार करने के लिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी के शिक्षक और सभी स्टाफ मेंबर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। समय पर आपको हम लोग गाइडेंस प्रदान करते रहेंगे। एक बार फिर मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बेहद पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मंगलायतन यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your informative words. Words of experience and wisdom always leave a lasting impression on young minds, motivating them to aim higher and achieve greater. It is indeed a privilege for all of us to have such esteemed leaders among us today. Next, we are privileged to hear from our respected Registrar Sir, Brigadier Samaveer Singh, who will guide and inspire our students with his words of wisdom. आदरणीय कुलपति प्रोफेसर पी.के. दशोरा, उपस्थित डीन, डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, नव प्रवेशित छात्र और उनके अभिभावकगण, सबसे पहले आज के इस विशेष अवसर पर आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत। और स्वागत के साथ साथ मैं नव प्रवेशित छात्रों को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिताओं को जो उनके साथ आए हैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा। बधाई इसलिए कि आपके बच्चों ने क्वालिफाइंग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर हायर एजुकेशन को अपनी काबिलियत दर्शाई है। बधाई इसलिए कि आज हायर एजुकेशन की दिशा में विश्वविद्यालय के प्रांगण में उनका पहला कदम है। बधाई इसलिए भी कि आपने मंगलायतन विश्वविद्यालय का चयन किया जो एक नेक A+ एक्रेडिटेड संस्था है। जैसा कि आप अपने सामने विजुअल पर देख रहे हैं, राइट टॉप कॉर्नर पर, हो सकता है आप
में से काफ़ी में ये जिज्ञासा हो कि ये क्या है, ये NAAC A+ का मतलब क्या है। आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक परिषद है और जो विश्वविद्यालयों की और शिक्षण संस्थानों का असेसमेंट करके उनका ग्रेडिंग करता है और ग्रेडिंग प्लस तक जाती है। तो आपकी का जो ये चयन है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, ये देश की गिनी चुनी अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है और जिसका नाम देश और विदेशों तक है, और यहाँ पर देश और विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस विद्यालय के अंदर सभी प्रदेशों के साथ साथ करीब 8 से 10 विदेश या फॉरेन कंट्रीज से विद्यार्थी यहाँ आते हैं और शिक्षण ग्रहण करते हैं। आखिर ये A+ ऐसे है, ये असेसमेंट होता कैसे है। मुख्य बातें कि यहाँ की जो फैकल्टी है, ये जो परिषद है, ये एक टीम भेजती है और देखती है कि यहाँ पर किस तरह की फैकल्टी है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी शोध की दिशा में क्या उपलब्धियां हैं, अनुभव क्या है, उसका आंकलन किया जाता है। फिर यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी क्या अर्हताएं हैं, क्या उनके अंदर वो क्षमताएं हैं जो उच्च शिक्षा में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं, समुचित योगदान दे सकते हैं, उसका आंकलन किया जाता है। फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह का कैरिकुलम है कि शिक्षा के साथ साथ वो सारी गतिविधियां भी हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, क्या कैरिकुलम को उस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है और देश की ज़रूरतों के मुताबिक उसको मोल्ड करके एक एम्प्लॉयबल और इस तरह का यूथ पैदा किया जाए, तैयार किया जाए जो देश के लिए एक ऐसा युवक हो जो भरपूर योगदान दे सके, उसका आंकलन किया जाता है। यहाँ की लेबोरेटरी इस विश्वविद्यालय की कैसी है, वो क्या फुल्ली इक्विप्ड हैं, वहाँ पर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों को अवसर मिल रहा है, अध्यापकों को शोध करके आगे बेहतर रिसर्च करके और नई शोध का अवसर मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिलाकर के यहाँ का कैसा है, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ की लाइब्रेरी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एडमिशन के डायरेक्टर, यहाँ पर बच्चों के लिए और सुविधाएं, कैफेटेरिया, बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं, बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल, बच्चों के खेल कूद की सुविधाएं, अबव ऑल एक ऐसा माहौल जो ग्रीन कैंपस के तौर पे आपने आज देखा होगा, जो अवे फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड जिसको बोलते हैं, कि शहर की हमदम से अलग एक ऐसा माहौल जहां बच्चा स्वस्थ वातावरण में पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है, उस तरह का एक कैंपस, ग्रीन कैंपस, जहां सुरक्षा, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो। ये वो कैंपस है जहां सीसीटीवी कैमरेज हों, या हमारे सुरक्षा कर्मचारी हों, या हमारे
प्रोक्टोरियल गार्ड की निगरानी हो या हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी और प्रॉक्टर्स की देखरेख हो, इस तरह का माहौल यहाँ बनाना कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित हों और खासकर जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी सुरक्षा हो और वो फ्री एंड फेयर माहौल के अंदर जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। कैंपस के अंदर वो सुविधाएं हों कि यूनिवर्सिटी के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इन जो है वो इंडस्ट्री के साथ हो, जहां से इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा सके, वो यहाँ आए, प्रशासन को मदद करें, स्टूडेंट्स को गाइड करें, स्टूडेंट्स को वहाँ इंडस्ट्री में ले जाएं और स्टूडेंट्स को वो मार्गदर्शन मिले, चाहे विजिट्स के द्वारा, चाहे इंटर्नशिप्स के द्वारा, चाहे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की टॉक्स के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों के अंदर वो क्षमताएं बने कि वो यहाँ से कोर्स प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक ऐसा युवा बने जिसकी देश को जरूरत है। और फिर एक सेल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एक टीम ऐसी हो जो उस पर लगातार काम करे, जो विद्यार्थियों को देखे कि इसको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको डिग्री करने के बाद इसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको और जो शिक्षा है, नॉर्मल रूटीन है, उससे हटकर और क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर उस दिशा में काम करे कि जो बाहर से इंडस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, यहाँ पर इंटरव्यू सेशंस हो, उनका सिलेक्शन हो, जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में हमारे विद्यार्थी अग्रणी हैं। प्रोग्राम करते करते ही या प्रोग्राम करने से पहले ही ज्यादातर का प्लेसमेंट हो जाता है। तो मैं जो ये आगे जो विजुअल आपने देखा है, इसके राइट टॉप कॉर्नर पर जो लिखा है, इसके पीछे इस विद्यालय का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के रिसोर्सेज यहां हैं, उसकी तरफ मैंने आपका ध्यान लिया था। इसके सिवा कुछ एक चिंताएं अभिभावकों की और विद्यार्थियों की होती हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा कि अक्सर अभिभावक चिंतित रहते हैं रैगिंग जैसे मुद्दे को लेकर के कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घट जाएगी जिसका हमारा बच्चा एक अच्छे माहौल में पढ़ाई करने के लिए जो हम अवसर देख रहे थे उसे कुछ तनाव हो जाए या वो कुछ सफर कर जाए। मैं आपको बता दूं, मैं इस विश्वविद्यालय के अंदर 5 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन से यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैंने कोई ऐसी इंसिडेंट देखी नहीं जिसको रैगिंग की कैटेगरी में रखा जा सके। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह की हैं कि वो रैगिंग जैसी घटना यहां होने की संभावनाएं नगण्य है। मैंने अभी जिक्र किया था कि पूरा जो कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड है, और क्योंकि सारे बच्चे निगरानी में हैं, इस तरह की घटना घटने की संभावना नहीं है। और यहां पर मल्टीलेयर वॉच है। मल्टीलेयर वॉच का मतलब है कि सिक्योरिटी स्टाफ है जो 24 आवर्स डिप्लॉय रहता है कैंपस के अंदर। वो निगरानी रखते हैं कि कैंपस के अंदर क्या हरकत हो रही है। इसके सिवा यहां प्रोक्टोरियल स्क्वाड है। प्रोक्टोरियल स्क्वाड हर डिपार्टमेंट की टीम उसके अंदर शामिल है और वो निगरानी रखते हैं, चाहे वो क्लास के अंदर हो या कैंपस में पूरी निगरानी बच्चों पर रखी जाती है। उसके सिवा एंटी रैगिंग टीम्स और डिसिप्लिन एनफोर्सिंग टीम्स
सभी डिपार्टमेंट्स में भी हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर सेंट्रल भी हैं। तो इन व्यवस्थाओं के होते हुए इस तरह की कोई घटना घटे ऐसी संभावनाएं नगण्य है। इसके सिवा जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं उन पर सुपरविजन रहता है वार्डन्स का, और वार्डन की मदद करने के लिए वहां भी हमारे जो टीचर्स हॉस्टल में रहते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हॉस्टल में रहता है उनकी भी टीम है, असिस्टेंट वार्डन्स भी हैं जो राउंड द क्लॉक बच्चों की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। तो अभी मैं नवप्रवेशित विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को मैं उम्मीद करता हूं कि इस तनाव से तो वो बाहर आ जाएं, आ गए होंगे, और मैं ऐसा समझता हूं कि उन्हें इस तरह की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। और इन सब के बावजूद एक सुझाव मेरा है विद्यार्थियों को भी, और मैं चाहूंगा कि जो अभिभावक हैं वो भी उन बच्चों को इस तरह की बातें बताएं कि यदि बच्चे को लगता है कि उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है या घटने वाली होती है, घटने वाली है, तो उसका व्यवहार कैसा हो। हमें ग्रंथों में एक प्रसंग मिलता है, आचार्य चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक छोटी सी स्टोरी है, और पहले पुराने जमाने में सिंचाई के लिए रहट चला करती थी। एक जायंट व्हील होता था, उसके ऊपर बाल्टियों की एक चेन होती थी। खाली बाल्टी उल्टी होकर के नीचे कुएं में जाती थी और भरी बाल्टी ऊपर भर के आती थी, और वो पानी सिंचाई के लिए जाता था। तो उनका ये मानना था कि जो झुकता है, खाली बाल्टी नीचे गई भर के वापस, जो झुकता है वो प्राप्त करता है, वो भर के वापस आता है। और यही नियम हमारे जीवन में भी लागू है कि जो झुकेगा वो प्राप्त करेगा। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर होंगे। तो ऐसी दादागिरी का फायदा क्या। मेरा सुझाव यह है कि यदि आपको लगता है कि कोई कमेंट किसी से ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको इग्नोर करके आप वहां से निकल जाएं, ये बहुत समझदारी की बात है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि आप चिंतित हैं, तो यहां पर हॉस्टल में वार्डन्स हैं, आपके प्रोक्टोरल स्क्वाड के मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट में लोग हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और फिर हम सब हैं यूनिवर्सिटी में। उनकी नॉलेज में ये बात ले आइए और निश्चिंत हो जाइए, वो फिर उसका सही रास्ता निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि इस पहलू से, मेरी इन बातों से आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे। और अब मेरी 2-4 बातें हैं कि इन सभी बच्चों के लिए सिर्फ मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता कि मैं कोई भाषण यहां दूं और कुछ दिन आपको याद रहे और धीरे धीरे वो जो है आप भूल जाएं। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि जो आप एक पक्षी के बारे में सोचें और वो सारी बातें याद आ जाएं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। और वो पक्षी है बाज, ईगल। और इस ईगल की 5 क्वालिटीज के बारे में मैं बात करूंगा, और ये 5 क्वालिटीज ईगल के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में आएंगी, और आप, मुझे विश्वास है कि यदि उन क्वालिटीज को आपने अपने चरित्र में उतारने की कोशिश की तो आपका यहां का टेनर सफल होगा, उपलब्धियों भरा होगा। बाज की पहली क्वालिटी विजन। आपने देखा है कि जो ईगल है
वो बाकी बर्ड से ऊपर उड़ता है, मीलों ऊपर उड़ता है, किलोमीटर ऊपर उड़ता है, और वो किलोमीटर ऊपर उड़ करके जमीन पर इवन छोटी से छोटी चींटी को भी देख लेता है। टेलीस्कोपिक आई साइड उसकी होती है। इससे हमें ये देखना है कि हमने अपने जो टारगेट हैं वो हाई रखने हैं, और जब ऊंचा सोचेंगे तो उस ऊंची सोच को हासिल करने के लिए आप कदम भी उठाएंगे, मेहनत भी करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, बच्चों के लिए कहा था कि ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स इवोक थॉट्स एंड थॉट लीड टू एक्शन। यदि आप सोचेंगे नहीं, कुछ बड़ा करने की सोचेंगे नहीं, तो आप के अंदर विचार कैसे आएंगे कि ये मुझे हासिल करना है, और उस दिशा में आप कदम कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन वो चुनते हुए आप अपनी सामर्थ्य देखें, आप देखें आपके अंदर नेचुरल प्रतिभाएं क्या हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट्स तय करें और उस दिशा में काम करना शुरू करें। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कोटेशन दिया है इस क्षेत्र में। यदि वो आपकी मदद करता है तो आपके लाभ के लिए मैं बोल देता हूं। बना लिया मन ऊंची उड़ान का, नापना मुश्किल है कद आसमान का। सुना है ना उनका ये डायलॉग, ये कोटेशन। तो एक बार बना लिया ना आपने ऊंची उड़ान का, तो फिर आपको रोकने की कोई ताकत नहीं, आप वहां पहुंच करके मानेंगे। मैं दूसरी क्वालिटी की तरफ आता हूं, फ्लाइंग विद इट्स ओन फ्लॉक्स। ये जो ईगल है ये अपने ही, ये बाज के साथ ही उड़ता है, ये किसी और बर्ड के साथ नहीं उड़ता। तो जब यहां कैंपस के अंदर हो तो आप देखो कि आपने दोस्ती उन्हीं से करना चाहिए जो आपके साथ कोलैबोरेट कर सकें, जिनकी सोच आपसे मिले। और जब कोलैबोरेशन होता है तो उपलब्धि भी एक विशेष होती है, और जिसके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं वो खुद भी उपलब्धि करता है और विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, और जिसके साथ आप कोलैबोरेट करते हो आपकी भी विशेष उपलब्धि होती है। तीसरी इसकी क्वालिटी है ईट्स फ्रेश। ये बिल्कुल ताजा खाता है। बच्चों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी आपने बाज को या ईगल को देखा नहीं होगा कि कोई जानवर बड़ा पड़ा है और उसमें से वो मीट खा रहा है। नॉन वेजिटेरियन है लेकिन फ्रेश खाता है, फिश खाता है, बर्ड को कर लेगा, स्नेक को मार लेगा, लेकिन तुरंत ताजा मार के खाता है। तो इसका आपकी जीवन से प्रसंग क्या है? आपके जीवन से प्रसंग ये है कि यहां पर आपकी क्लास चलेंगी, आपकी क्लास में आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको नोट्स देंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, लेकिन घर जाकर के उन नोट्स को थोड़ा, यहां पर वाईफाई कैंपस है, थोड़ा रिसर्च कर लेना और उन नोट्स को थोड़ा एनरिच कर लेना, उनको थोड़ा फ्रेश बना लेना। और जब आप फ्रेश बना लेंगे और इस मटेरियल को खाएंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो कुछ विशेष आपको उपलब्धि उससे मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आपके टीचर्स भी आपको रिवार्ड देंगे कि ये देखिए पढ़ाया तो मैंने इतना ही था, इस बच्चे ने इतना और कर दिया, इसको तो कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। ट्रेन्स हार्ड, ये बहुत मेहनत करने वाला जानवर है। जब तूफान आते हैं, आंधी आती है, तभी ये दिखाई देता है, वरना ये घोंसले में रहता है।
और तभी ये अपने बच्चों को भी धकेल करके बाहर करता है। वो उनको ट्रेनिंग देता है कि जाइए हवाओं के थपेड़ों से अपने अपने अपनी अपना एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आप को ये थपेड़ों को झेलने के लिए तैयार कीजिए। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां आपके लिए माहौल बनाया जाएगा, लेकिन आपने वो कोटेशन याद करना है, डोंट प्रे टू हैव एन इजी लाइफ, प्रे टू बी ए टफ मैन। यू अंडरस्टूड? यदि आप यहां पर कभी कभी जो माहौल बनेगा, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको टास्किंग की जाएगी, जो वो डिफिकल्टीज आपके टीचर्स आपके लिए पैदा कर रहे हैं, वो आपकी ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं और आपके विकास के लिए कर रहे हैं, तो आप उसे उसी स्पिरिट से लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंफर्ट जोन में नहीं जाता है। इसका आप घोंसला देखिए, उस घोंसले के अंदर ये टहनियों से इकट्ठा करके घोंसला बनाता है। बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है नीचे की तरफ, जहां पर कॉटन के कपड़ों के वो होते हैं, टुकड़े होते हैं और थोड़ा कॉटन होती है। वो भी इसलिए कि जब इसका यंग बच्चा होता है तो कम से कम छोटा, जब वो बहुत ज्यादा नाजुक है उसे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो उसे कांटे चुभे, उसे वो हार्ड जो टहनी है वो चुभे और उसे झेल करके वो एक मजबूत पक्षी बनकर के सामने आए। कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, उपलब्धियां भी उसी तरह की होंगी। तो जो मैंने 5 क्वालिटीज बताई, इसके अंदर क्वालिटीज तो बहुत होती हैं, लेकिन ये 5 अहम क्वालिटीज हैं, अपने जीवन में ये उतार लेंगे तो आपका यहां का जो स्टे है वो सफलता के ओर आपको ले जाएगा। और यदि कभी आपको लगे कि यार मेहनत तो मैंने बहुत की थी, लेकिन मुझे वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई जो मुझे हो जानी चाहिए थी, वो आपका एक इंप्रेशन है, आपका वहम हो सकता है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो कम से कम सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता की 4 लाइनें आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, ये याद कर लेना और ये आपको बताएगा कि क्या है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर भी आपका मन यदि तसल्ली नहीं दे रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी मेहनत की है वो मेहनत आपके काम आने वाली है। आपको ये लग सकता है, आप अपने रिव्यू कर सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता को के मद्देनजर, लेकिन क्योंकि आपने मेहनत की है, आपको थोड़ा भ्रम हो रखा है कि आपको वो चीज उपलब्ध नहीं हो रही जिसके लिए मैंने काम किया था। तो भाई एक शायर हैं शहरयार, उनकी 4 लाइनें हैं, उन पर थोड़ा गौर फरमा लेना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। जो काम किया ना वो तो मिल गया, दुनिया से बहुत कुछ देखने को मिल गया, वो कुछ ना कुछ काम आने वाला है। मैं वैसे ही जितना टाइम मुझे दिया गया था उससे मैंने ज़्यादा ले लिया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर से एक बार सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। So much, sir, for your motivational words and informing parents and students about the facilities
and the resources that has been provided by the university. Now, to add a touch of creativity and celebration to this afternoon, we prepared a cultural segment by talented students. The true strength of a university lies in the wisdom and vision of leadership, which guide both students and faculty towards excellence. Every institution shines under the visionary leadership of its head. Today, we are truly honored to have among us our respected Honorable Vice Chancellor Sir, Professor P.K. Dashora. I request Sir to kindly bless the gathering with his inspiring words. Sir, please. आदरणीय कुल सचिव महोदय ब्रिगेडियर समरवीर सिंह जी, संयुक्त कुल सचिव महोदय प्रोफेसर दिनेश जी, अधिष्ठाता महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय, सभी अभिभावकगण और विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार आने वाले विद्यार्थी बंधुओं, आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है और विद्यार्थियों के जीवन में नया अध्याय खुलने के साथ साथ ही जो सभी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं वो भी उस नए अध्याय पर लिखे हुए वर्तनी को सुंदर अक्षरों में देखने की अपेक्षा रख रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में जब कदम रखा उसके पहले सभी विद्यार्थियों ने अपनी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भविष्य के सपने सजोए और उन सपनों को सजोने के क्रम के अंदर कहाँ प्रवेश लेना है, किस विषय में प्रवेश लेना है, इसके बारे में कई जगह विचार किया, कई जगह मंथन किया, अपनी पूरी शक्ति लगा करके एक निर्णय लिया कि हमें मंगलायतन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे तो हमें सीखने को भी मिलेगा और हमारा विकास भी होगा। किसी और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की उनकी इच्छा हो सकती है, पर मैं उन्हें इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत सटीक, बहुत सही और बहुत बढ़िया निर्णय लिया। मैं सभी अभिभावकों को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने और उनके पुत्र पुत्रियों ने मिलकर के जो निर्णय लिया मंगलायतन विश्वविद्यालय में बच्चों के अध्ययन को प्रारंभ करने का और उसे जारी रखने का संकल्प लिया, वह उनके लिए जीवन में एक बहुत अच्छा निर्णय साबित होगा। कहने के लिए बहुत कुछ विशेष नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, यह केवल कहने मात्र से काम नहीं चलता। फिर भी हमारे कुल सचिव महोदय ने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बतलाया कि जो विद्यार्थी यहाँ आता है वह अपने जीवन का निर्माण करके निकलता है। उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो वातावरण उसको यहाँ मिलने की गारंटी है, प्रोवाइडेड यदि वो उसमें से अधिक लेना चाहता है। यानी वो अधिक से अधिक लेना चाहने के लिए कुछ विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षा क्या है कि कक्षाओं में अपनी उपस्थिति नियमित रूप से रखें। कक्षाओं में उपस्थिति रखना मात्र नहीं है, उपस्थिति के साथ जो कुछ भी वहां पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक तरह से पढ़ें, हृदयंगम करें। और उसके साथ जैसा कि हमारे कुल सचिव महोदय ने संकेत दिया, घर आकर, रूम पर जाकर, कक्ष में जाकर विद्यार्थियों के साथ बैठकर बात करते हुए, साथियों के साथ बैठकर बात करते हुए जो कुछ भी पढ़ा है उसमें और कुछ अधिक जोड़ने का प्रयत्न करें। वह अपने स्वतंत्र अध्ययन से होगा, स्वतंत्र चिंतन से होगा। और उसका लाभ क्या होगा, बताया था आपको कि कुछ अधिक हमें जानकारी मिलेगी, पर उसके साथ लाभ एक और होता है कि नए प्रश्न और आपके मस्तिष्क में खड़े होंगे
और उन प्रश्नों को जब आप आने वाली कक्षा में अपने शिक्षक के समक्ष रखेंगे तो उनका समाधान भी आपको मिल सकेगा। तो यह एक बहुत आवश्यक बात है। नियमितता, जीवन में आई हुई नियमितता केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे संपूर्ण जीवन भर हमारे साथ रहती है। ये एक आदत बन जाती है, ये व्यवहार बन जाता है। इसको हम कहते हैं कि हमारी प्रकृति बन जाती है कि हम नियमितता को साथ में लेकर के जी सकें। और वह नियमितता जीवन में भविष्य में भी हमें बहुत बहुत अधिक सहायता करती है और सफलता के शीर्ष तक पहुंचाती है। साथियों, कई विशेष यहाँ की सुविधाओं के बारे में आपको बतलाया, व्यवस्थाओं के बारे में आपको बतलाया, पर एक और व्यवस्था जिसका मैं आपको बतलाना चाहूँ, यहाँ पर मेंटर मेंटीशिप है। हर विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह उनको किसी मेंटर के साथ अटैच किया जाएगा और प्रत्येक मेंटर के साथ कई विद्यार्थी होते हैं। तो अपेक्षा विद्यार्थी से यह है कि वह मेंटर से सीधा संपर्क रखे। मेंटर उनको सलाह देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। शैक्षिक और व्यक्तिगत दोनों ही बातें वो मेंटर के साथ बड़े खुल करके कर सकते हैं, उनको कोई समस्या आती है तो। पर इसके लिए आवश्यक क्या है कि वह मेंटर को अप्रोच करे, मेंटर से जीवंत संपर्क रखे। और मेंटर से जीवंत संपर्क रखने के साथ साथ अगर वो छात्रावास में है तो अपने आवास अधिकारी से भी संपर्क रखे। वह संपर्क उनके लिए कई तरह से काम आएंगे। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की शैक्षणिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। उन गतिविधियों में पूरी निष्ठा के साथ भागीदारी करें। अभी हमारे अभिभावकगण भी बैठे हैं, विद्यार्थी भी, नवांगन तो विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पर। और नमूने के तौर पर आपको हमारे एक साथी ने, विद्यार्थी साथी ने एक भजन गा के सुनाया। तो ऐसी प्रतिभा आप में सब में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। किसी में खेल के मैदान में होगी, किसी में नाटक में होगी, किसी में बोलने में होगी, किसी में गाने में होगी, किसी में विभिन्न गतिविधियों को आयोजन करने में होंगी। तो अपने अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको विकसित करने का पूरा मौका दें। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये अभिनवन प्रोग्राम इस बात का है कि आपको सचेत किया जाए। सामान्यतः प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी कक्षाओं में जाता है और कक्षा में जाकर के थोड़ा सा अजनबी सा फील करता है। उसका साथी कौन है उसे पता नहीं होता है। फिर वो अपनी मित्रता बनाता है, संगत बनाता है, शिक्षकों को पहचानता है। फिर इस विश्वविद्यालय ने आपको पहले दिन ही विश्वविद्यालय की गतिविधियों से आपका परिचय करना प्रारंभ किया। और यह प्रारंभ विश्वविद्यालय की गतिविधियों से, वो जो आपके निर्माण के लिए काम आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके लिए केवल आज ही यह हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसमें एक सातत्य की आवश्यकता है। वह सातत्य आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को ठीक तरह से साधते हुए निभाना पड़ेगा। और प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या किस प्रकार से बनेगी यह आपको तय करना है। विश्वविद्यालय का समय 8:30 बजे से प्रारंभ होकर के शाम को 5 बजे तक रहता है। उसमें आपकी कक्षाएं रहेंगी, बीच में आपको लंच का समय भी मिलेगा और आपके शारीरिक पोषण के लिए विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बारे में आपको बतलाया गया है, बतलाया जाएगा कि प्रातःकाल अल्पाहार से लेकर के सायंकालीन भोजन तक शुद्ध सात्विक भोजन आपको उपलब्ध हो, समय पर उपलब्ध हो, उसकी यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पोषण का ठीक ध्यान रखें। पोषण का ध्यान रखे बिना आप अपने लिए ही नहीं अपने अभिभावकों के लिए भी चिंता पैदा कर देंगे। तो मैं सारे अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने वार्ड्स को थोड़ा सा सजग कर दें, सचेत कर दें कि वे
शुद्ध और सात्विक भोजन के प्रति सावधान रहें और बाहर रहें या छात्रावास में रहें, भोजन के प्रति नियमित बने रहें, वो ठीक भोजन करें और केवल भोजन करना नहीं, भोजन के साथ साथ शारीरिक श्रम भी पूरा करें, खेल के मैदान में करें, घूमने फिरने में करें। और घूमने फिरने और खेल के मैदान के साथ ही अभी बताया था कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पुस्तकालय है। उस सुंदर पुस्तकालय का, बहुत प्रचुर पुस्तकालय का, एक धनी पुस्तकालय का हम किस प्रकार से अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं, वह लाभ उठाना आपके हाथ में है। विभिन्न विषयों की पुस्तकें वहां उपलब्ध हैं जो आपके सब्जेक्ट, आपके विषय से संबंधित तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भी आपका ज्ञान का भंडार बढ़े, इसके लिए अलग अलग तरह की पुस्तकें भी वहां उपलब्ध हैं। हम पुस्तकालय के सदस्य होने के नाते पुस्तकालयों को पुस्तकालय से इशू भी करवाएं, उन्हें पढ़ें भी और उन पर मनन चिंतन भी करें। साथियों, विश्वविद्यालय ने आपके विकास के लिए कुछ विशेष क्लब्स भी खोले हैं। उन क्लब्स की सदस्यता लें, उनकी गतिविधियों में भाग लें। और इस प्रकार से मैं आपको अनेक चीजें गिना सकता हूं जिनके माध्यम से एनसीसी है, एनएसएस है, कदम है और दूसरी गतिविधियां हैं। उन्नत भारत की हमारे यहाँ पर कार्रवाई चलती है, गतिविधियां चलती है। तो इन सब गतिविधियों में पूरी सक्रियता से भाग लें। और सक्रियता से भाग लेने के साथ आपको मिलेगा क्या, उसको अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो जो हमारे कुल सचिव महोदय ने ईगल का एग्जाम्पल दिया, तो हर प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आएगी और उस पर विजय प्राप्त करना आप सीखेंगे, उससे सीखना आप सीखेंगे। अन्यथा हम केवल एकांगी होकर रह जाएंगे। हमारा समग्र विकास होना चाहिए। समग्र विकास होने के लिए आवश्यक है कि हम सभी दिशाओं में अपना विकास करने का प्रयत्न करें, पर साथ ही पढ़ाई के साथ कोताही न बरतें, पढ़ाई के साथ कोई समझौता न करें। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ हमारे कुछ शिक्षक साथी भी बैठे हैं, अभिभावक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। विश्वविद्यालय में सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं चलेंगी। 2 दिन शनिवार और रविवार कक्षाएं नहीं चलेंगी। पर इस शनिवार और रविवार का किस प्रकार से उपयोग करना है, इसके लिए आपको बहुत प्रारंभ से ही सजग रहना पड़ेगा। वह इसलिए आपको दिए जा रहे हैं शनिवार और रविवार अवकाश के रूप में कि आप 5 दिन में जो कुछ भी कक्षाओं में पढ़ा है उसको ठीक तरह से रिवाइज कर सकें, उसकी पुनरावृत्ति कर सकें, उसको हृदयंगम कर सकें, उसको सीख सकें, उसके बारे में चर्चा कर सकें और आने वाले कक्षा के समय अपने शिक्षकों से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। ये 2 दिन बहुत महत्व के होते हैं। ये 2 दिन केवल घूमने फिरने या आराम करने के नहीं होते हैं। वस्तुतः ये शेष 5 दिनों से अधिक आपको सक्रिय रखने के लिए होते हैं और शेष 5 दिनों में आप अपना पूरा का पूरा प्रतिफल प्राप्त कर सकें, इसके लिए एनर्जाइज करने के लिए 2 दिन हैं। ये वो एनर्जाइज करने के लिए, आपको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन 2 दिनों के अंदर, वो ऊर्जा शैक्षिक ऊर्जा भी हो सकती है, शैक्षणेतर ऊर्जा भी हो सकती है। और इन सब के साथ जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है, सफलता आपके गले में माला डालती है। इस अभिनवन प्रोग्राम के इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करता हूं कि घर वालों ने आपको, विद्यार्थियों, बड़े आशा के साथ यहां भेजा है। यह नेक A+ लिखा हुआ यह ऐसे ही विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत, जिसे कहें कि योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया है, तब जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के करीब 1200 विश्वविद्यालयों में से कुछ एक गिनती के विश्वविद्यालयों को नेक A+ मिला हुआ है। वह मंगलायतन विश्वविद्यालय है। उस नेक A+ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने का आप पूरा लाभ ले सकें, इसकी आपको खुद को अपनी योजना बनानी है। और वह योजना कैसे बनेगी,
आपका समय चक्र ठीक करके, अपने एक एक मिनट को काम में लेकर के। साथियों, मैं अक्सर कहा करता हूं, टाइम इज मनी, पर इतना ही नहीं कहता हूं, टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज मच मोर देन मनी। पैसा तो खर्च हो जाता है, वापस कमा भी लेते हैं, पर गया हुआ समय वापस नहीं आता है। जो घर वाले ने आपको यहां भेजा है, बहुत आशाओं के साथ भेजा है, बहुत अपेक्षाओं के साथ भेजा है। मुझे विश्वास है कि आप अपने घर वालों की आशाओं को धूमिल नहीं करेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और उनकी अपेक्षाएं आपको एक श्रेष्ठ नागरिक बनाते हुए, उनकी अपेक्षाएं आपको भारत मां का अच्छा सपूत और सेवक बनाते हुए अपने जीवन का निर्माण भी अच्छी तरह से कर सकें, ये उनकी अपेक्षाएं हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा, मैं हमारे सभी शिक्षक साथियों से भी कहूंगा कि आने वाला यह सत्र यानी विद्यार्थियों के लिए हमें समर्पित करना है। पिछला सत्र हमने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए समर्पित किया था, तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ इनोवेटिव रिसर्च के साथ भी यह सत्र समर्पित है। और उसको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारा विश्वविद्यालय सप्ताह में 5 दिन चलेगा। इस संबंध में आवश्यक, जिसे कहें कि नोटिस, आदेश हमारे कुल सचिव महोदय जारी करेंगे ही, पर हम सभी अपना काम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ और धैर्य के साथ करेंगे। एक और बात मैं कहता हूं, धीरे धीरे चलो लेकिन जल्दी जल्दी, धीरे धीरे चलो लेकिन जल्दी जल्दी, यह बहुत समझने की बात है। इस संबंध में आपने कई सूक्तियां पढ़ी होगी। चलती हुई चींटी 1000 योजन चली जाती है और बैठा हुआ पक्षी अपनी जगह ही बैठा रहता है। तो हमें चलना है, प्रतिदिन कुछ न कुछ कवर करना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है और थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बन जाना है। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों को केवल 4 पंक्तियां कहूंगा। जीवन में याद रखना और उस आधार पर अपने जीवन का निर्माण करने का कोशिश करते रहना। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी। आपके माता पिता ने इसी अपेक्षा के साथ आपको यहां भेजा है। मैं आपके सुखद, सुंदर और गौरवशाली भविष्य की कामना करता हूं। आपको इस अभिनंदन कार्यक्रम के में आप आए, आपने हमारे रजिस्ट्रार साहब को, डीन एडमिशन को, इन सबको सुना और मुझे विश्वास है कि यहाँ से संकल्प लेके उठेंगे, अपने माता पिता के साथ बिल्कुल संवाद रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं सभी अभिभावकों से एक अपेक्षा करता हूं कि आप अपने विद्यार्थी, अपने बालक के शिक्षकों से संपर्क बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। Thank you so much, sir, for such inspiring words. As we come close to this wonderful program, it is time to express our heartfelt gratitude to all those who made it possible. Gratitude is the simplest yet the most powerful way to acknowledge support and encouragement. I request Principal of School of Pharmacy, Professor Abdul Wadud Siddiqui on stage to present the vote of thanks. Sir, please. Honorable Vice Chancellor, Professor P.K. Dashora, Dean Academics, Professor Rajiv Sharma, our Registrar, Brigadier Sumarveer Singh, and Joint Registrar, Professor Dinesh Sharma, Director Admissions, Professor Saurabh Kumar, other
Dean, Directors, faculty members, and the students and parents who have assembled here today for this orientation program. I welcome you all. I have been asked to express gratitude on behalf of the university for the people who have taken part in this orientation program. सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स का और उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मंगलायतन यूनिवर्सिटी के फार्मेसी प्रोग्राम में अपना यकीन दिखाया और यहाँ एडमिशन लिया, और फार्मेसी डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स, टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जिस उम्मीद के साथ में यहाँ एडमिशन लिया है उस उम्मीद के पूरा करने में यहाँ के टीचर्स, लैब स्टाफ कोई कोशिश नहीं उठा रखेंगे। जिस कैरियर के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो कैरियर आपको हासिल हो सके, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकें, ये भरपूर कोशिश हम सब मिलके करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने बहुत ही सीधी, आसान ज़बान में मगर बहुत ही बुनियादी बातें आप सबके लिए कहीं। सर ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर सुमेरवीर सिंह, being from an army background, presented a very inspiring analogy in front of you of an eagle. So I hope कि आप सब ने उसमें से कुछ ना कुछ रिसीव किया होगा और आप अडॉप्ट करेंगे। एंड आई थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। आई ऑल्सो थैंक आवर डायरेक्टर एडमिशंस प्रोफेसर सौरभ कुमार, एक्चुअली जिनकी वजह से आज आप और हम सब यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। उनकी एडमिशन टीम, आज के जो रजिस्ट्रेशन टीम है, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से आप और हम आज यहाँ पर एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं। आई ऑल्सो थैंक डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर राजीव शर्मा। दिस होल ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज एक्चुअली हिज बेबी, और ये जो कुछ भी आज और अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में होगा, ये सब उन्हीं के ऑफिस से क्रियान्वयन इसका हो रहा है। एंड सर वी थैंक यू a lot for organizing this. Our joint registrar Professor Dinesh Sharma is here. He will be addressing you later on, but he has taken out time from his very busy schedule. Sir, we thank you for joining us here today for the orientation. बारिश की वजह से कई बार हम लोगों को अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, और आपसे भी हमने रिक्वेस्ट करी कि बदलते हुए मौसम के हिसाब से प्रोग्राम को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। हमारी स्टेज कोऑर्डिनेशन टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन बदलती हुई इंस्ट्रक्शंस के साथ में इस प्रोग्राम को बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया, और आप सबका भी फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरा सहयोग दिया। बड़े पेशेंटली, बड़े सब्र के साथ में आप यहाँ पे बैठे रहे कार्यक्रम को पूरा करवाने के लिए। हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो कि आपको हो सकता है स्टेज के पीछे या ऑडिटोरियम के बाहर नज़र आ रहे हों, उन सब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही फ्रीली, बहुत ही मन से अपनी मदद दी ताकि हम इसको बहुत ही आराम से कंडक्ट कर पाए। आप सबको भी शिप्रा ऑडिटोरियम में भी और इधर भी हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने आई एम श्योर गाइड किया होगा। फार्मेसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम सिस्टम क्या है, हमारी लेबोरेटरीज कैसे चलती हैं, इन सब की जानकारी आपको कल से डिपार्टमेंट के अंदर आपके फैकल्टी मेंबर्स के ज़रिए दी जाएगी। ठीक है, कल आप सुबह जब आएंगे तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे, वहीं पर आपको सिलेबस, टाइम टेबल, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। Once again, I thank you all for being here,
and thanks a lot to everyone present here.